rules to regulate collection, remissions and suspension of the land revenue. ये भी इख्तियारत क्या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है या किसी रेवेन्यू अथॉरिटी के पास है कि क्या लैंड रेवेन्यू कलेक्ट मुकम्मल करना है या उसमें से कुछ रिमिट करना है। इसके मुतल्लिक़ भी जो पॉलिसी जो रूल्स है वो किसके पास है। तो जो रूल्स है इट इज़ क्लिस्टर क्लियर थिंग के रूल्स in order to regulate the land revenue, collection the land revenue, remission the land revenue and suspension of land revenue be prepared by the board of revenue. After preparing that rules, informants to be done, informants to be clear out by the revenue officers as per the rules and policy of the board of revenue. The board of revenue may, with the previous approval of government, make rules. अब देखिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये भी इख्तियार है कि अगर गवर्नमेंट ने अभी वो पॉलिसी वो रूल्स नहीं बनाए तो उसकी सेक्शन अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं लेता फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द पर्पस ऑफ टाइम बीइंग, suitable rules and policy can be prepared by the board of revenue in order to collection the land of revenue. कि जब ये एक्ट बन के आएगा फिर उसके मुताबिक जो है ना वो रूल्स और पॉलिसी को फिर जो है ना वो चेंज किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपना काम मुकम्मल करने के सिलसिले में, रिकवरी लैंड एंड रेवेन्यू के करने के सिलसिले में गवर्नमेंट से अप्रूवल से कबल भी रूल्स बना सकता है। मेक रूल नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट to regulate the collection, remission and suspension of land revenue. किसी लैंड रेवेन्यू को रिमिट भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है, मगर ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो रूल्स और पॉलिसी उसके तहत वो एज पर पावर का मालिक है। कॉस्ट रिकवर्ड एज पार्ट ऑफ एरियाज, such person as landowner who is duty bound to pay the land revenue as per the share of the lands is not agree to pay that land revenue, he does not deposit the amount of land revenue as per the share of the land. All process in order to recover that amount must be initiated by the revenue officers, and that cost will be occurs which will be bear by the revenue officers for the purpose of recovery of that land revenue must be recovered by the revenue officer from that landowners, just like as recovery of areas of rent. कि वो कास्ट वो अखराजात जो लैंड रेवेन्यू को वसूल करने की बाबत एक तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर को एक लैंड ऑनर से, वो तमाम कास्ट वो प्रोसेस इशू करने के हवाले से वो तमाम अखराजात वो भी उसी ज़िम्मेदार से उसी लैंड ऑनर से वसूल पाई जाएगी। अगर वो टाइम पे पेड नहीं करता, देन अगर ड्यू टाइम पे पेड करता है, नो नीड ऑफ टेक द एक्शन, नो नीड ऑफ टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट दैट लैंड ऑनर्स who had been already paid the total amount of land revenue. Certified account to be evidence as to the arrears. जब एक लैंड ऑनर्स total amount of land revenue to be paid by the landowners to the revenue officers and statement have been issued by the revenue authority to that person who had been paid the total amount, and that statement was also signed or certified by that revenue officers. That statement has a good value in the eye of law, just like as documentary evidence. When a landowner needs a documentary evidence, when a landowner wants to produce the documentary evidence in his defense, in such matters for the recovery of land revenue, then that statement can be produced by the landowners before such officers who says the landowner has not paid the total amount, the total amount of land revenue, that landowner has not a some amount from that amount as land revenue to the revenue authority, then that documentary evidence can be produced by the
landowners to debt revenue officers for the purpose of specified to debt revenue officers that I have been total paid such amount which he requires by the revenue officers. तो ये मतलब है इसका वो सर्टिफाइड कापी, वो स्टेटमेंट जो रेवेन्यू ऑफिसर इशू करता है किसी माल के ज़मीन को, उससे लैंड रेवेन्यू वसूल करने के बाद, और कहीं पे डिस्प्यूट पैदा हो जाता है दोनों के दरमियान रेवेन्यू ऑफिसर के और माल का राजी के, रेवेन्यू ऑफिसर कहता है कि आपने पे नहीं किया, उसके पास वो स्टेटमेंट ऑलरेडी इशू की हुई है, सर्टिफाइड है, वो उसको ला के पेश कर सकते, दिखा सकता है कि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो मेरे पास है, जो मैंने आपको दिखा दी है और इससे पहले आपने इशू की हुई है। तो फिर दोबारा उसको जो है ना वो लैंड रेवेन्यू की वसूली की बाबत जो है ना वो कोई प्रोसेस इशू नहीं किया जाएगा। मतलब ये है मीनिंग देयर बाय कि वो स्टेटमेंट, such statement which will be issued by the competent authority as revenue officer to any landowners when the land rent to be recovered as the good value, just like as documentary evidence in the eye of the law. Process for recovery of arrears. What process can be adopted by the revenue officer for the recovery of arrears? ये सेक्शन 80 है, 3, 5, 6, 7 आगे उन्होंने मेथड बताए हुए हैं कि कौन कौन सा मेथड, कौन कौन सा तरीका, कौन कौन सा एक्शन कैन बी टेकन बाय द रेवेन्यू ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ एरियर्स सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू मे बी रिकवर्ड बाय एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, नेमली। ये 4, 5, 7 है, इनमें से ये नहीं है कि पहले 5, 7 जो प्रोसेस है without giving the information in shape of notice to the concerned landowners directly order to be passed by the revenue officer in order to arresting the debt landowners. This is not fair. This is not a legal actions. Law says according to this section 80, firstly notice to be issued by the revenue officer against such persons who is the defaulter in the eye of the revenue officers in the record of the revenue officers. The source of person is the defaulter, then it is the duty of the revenue officers. Section 80 subsection 1 जो है ना कि it is the duty of the revenue officers issue a notice of demand on the defaulter under section 81. इस notice के अंदर amount to be mentioned by the revenue officer in that notice will be issued by the revenue officers on the defaulter persons. Time and date was also mentioned by the revenue officer, on which date you must be appears before the revenue officers as per the notice. सेकंड क्या है, पहले नोटिस देने के बाद सेकंडली क्या है कि भाई रेस्ट आगे डिटेल के साथ इन्होंने मेंशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिटेल के साथ लैंड रेवेन्यू एक्ट में आगे लिखा हुआ है कि सर्विस किस तरीके से होगी, अरेस्ट कैसे होगा, क्यों होगा। अब शार्टी यहाँ पे मेंशन किया गया है। सेकंड क्या ऑप्शन है उसका रेवेन्यू ऑफिसर का, बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ हिज पर्सन अंडर सेक्शन 82। रेवेन्यू ऑफिसर हैज पावर टू अरेस्ट टू डेट डिफॉल्टर पर्सन्स। आफ्टर अरेस्टिंग टू डिफॉल्टर पर्सन्स ही कैन डिटेन टू डेट पर्सन हिज पर्सनल कस्टडी बाय टेस्टर्स एंड सेल ऑफ हिज मूवेबल प्रॉपर्टी एंड अनकट अनगैथर्ड क्रॉप्स अंडर सेक्शन सो एंड सो। ये भी एक रेवेन्यू ऑफिसर का इख्तियार है कि मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी सेल कर सकता है। वो एरियज की रिकवरी के हवाले से ही देखें कि रेवेन्यू ऑफिसर को कितनी अथॉरिटी, ये किसी भी हवाले से माफ नहीं, माफ है 2-3 चीज़ें जो मैंने पहले आपको बताई हैं। जब इसकी रिकवरी करेगा तो वो सेल ऑफ हिज मूवेबल प्रॉपर्टी को भी जो रिकवर उसको भी सेल कर सकता है, एंड अनकट अनगैथर्ड क्रॉप्स को भी अपने पोजेशन में ले सकता है। सच क्रॉप्स जो अभी पकी नहीं है, अभी गैथर्ड नहीं की उस लैंड ओनर्स ने, अभी वो अनकट है, प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद उसको अपने कब्जे में ले सकता है रेवेन्यू ऑफिसर्स अपनी रिकवरी के हवाले से। बाय ट्रांसफर अंडर सेक्शन 84 ऑफ द होल्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एरियर्स इज ड्यू। अब वो पोर्शन ऑफ लैंड जिसकी बाबत एरियर्स की रिकवरी है, रेवेन्यू ऑफिसर कैन ट्रांसफर ऑफ दैट होल्डिंग टू अनदर पर्सन फ्रॉम दैट विलेज till the recovery of due areas, कि जब तक उसकी रिकवरी नहीं होती उसका पोजेशन उसी आदमी को ट्रांसफ़र रहेगा जिसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जब वो मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद फिर
असल मालिक को वो रकबा ट्रांसफर कर दिएगा। बाई अटैचमेंट अंडर सेक्शन 85 ऑफ द होल्डिंग रिस्पेक्ट ऑफ विच द एरियर इज ड्यू, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर in order to attachment of that land about which the recovery is due by annulment under section 86 of the assessment of that holding, असेसमेंट जो उस होल्डिंग की है उसको कालादम भी करा दिया जा सकता है। बाय सेल ऑफ डेट होल्डिंग अंडर सेक्शन 88, दिस इज द लास्ट प्रोसेस, लास्ट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स, all process after completing the all process in order to recovery of the arrears, this is the last process in order to sell that holding about which the recovery is also due in tune of arrears by proceeding with other removable property of the defaulter under section 90। एक और ये एक्स्ट्रा पार है रेवेन्यू अथॉरिटी, रेवेन्यू ऑफिसर के पास कि वो होल्डिंग जिसकी बाबत रिकवरी है उसको सेल करने के बाद भी इफ दैट रिकवरी इज नॉट कंप्लीटेड आफ्टर सेलिंग दैट पोर्शन ऑफ लैंड, आफ्टर सेलिंग ऑफ होल्डिंग ऑफ लैंड, then revenue officer against then revenue officer has part to such property about which the arrears are not due, but that property is the real ownership of that defaulted persons, and that property can be sold by the revenue officers for the recovery of arrears। अब हम सेक्शन 80 पढ़ा, इसमें शॉर्टकट उन्होंने बताया था कि कौन सा प्रोसेस जो है ना वो किया जा सकता है। अब डिटेल के साथ 81 में चले जाएंगे कि नोटिस ऑफ डिमांड क्या है। नोटिस ऑफ डिमांड मे बी इशूड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर ऑन और आफ्टर द डे फॉलोइंग दैट ऑन विच एन एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू अकर्स। इसमें नई एक बात यह है कि ये नोटिस जिस दिन वो रिकवरी का प्रोसेस लैंड ओनर्स के अगेंस्ट हो जाता है उसी दिन ही नोटिस इश्यू हो सकता है, या आफ्टर पासिंग वन डेट फ्रॉम दैट डे व्हेन द लैंड रेवेन्यू हैज बीन अकर्स अगेंस्ट द लैंड ओनर्स बी इशू द नोटिस टू द लैंड ओनर्स, उससे अगले दिन जो है ना बी इशू हो सकता है नोटिस। अब नोटिस के बाद 82 है कि रेस्ट and detention of the defaulters, in which positions a defaulter can be arrested। if a defaulter is arrested, what process can be adopted by the revenue officer, क्या वो खुद अपनी पर्सनल उसको कस्टडी में रख सकता है, नहीं रख सकता, अगर रखता है तो कितनी देर तक रख सकता है। जब वो उसको अपनी कस्टडी में डिटेन करेगा तो उसकी भी रीजन उसमें लिखेगा। इट इज द ड्यूटी बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर इफ अ defaulter to be detained in his personal custody, reason to be mentioned by such revenue officers, and that reason to be narrated by such revenue officer to the before the district collectors। अगर वो नहीं रख सकता उस आदमी को तो डायरेक्टली वो पेश करने का पाबंद है। If after lapse of 15 days of the service of the notice of demand under section 81 on a defaulter the areas of land revenue due from him or any part thereof remain unpaid, the revenue officer may issue a further notice to the defaulter requiring him to pay such amount, and if after lapse of 30 days of the service of the such further notice such amount, if after lapse of the 30 days of the service of the such further notice, पहला जो नोटिस इशू करता है उसको उसके बाद फर्दर नोटिस इशू किया जाएगा, और फर्दर नोटिस के 30 दिन के बाद रेवेन्यू ऑफिसर्स में इशू, ये ज़रूरी नहीं है उसके लिए, हो सकता है अगर पहला जो नोटिस है वो उसके ऊपर जो है ना वो सर्व ही नहीं हुआ, दूसरा गया वो भी सर्व नहीं हुआ। अब ड्यूटी बाउंड नहीं है कि 2 नोटिस इशू करने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर मस्ट बी इशू द ऑर्डर ऑफ अरेस्टिंग ऑफ द डिफॉल्टेड पर्सन। नहीं, रेवेन्यू ऑफिसर में इशू अ वारंट डायरेक्टिंग एन ऑफिसर्स में इशू अ वारंट, अगर रेवेन्यू ऑफिसर गिविंग द नोटिस टू द डिफॉल्टर थिंक्स फिट, it is very necessary for me to issue the direction, to issue the orders to concerned officers in order to arrest the
defaulter person, then that orders can be issued, then order must be issued by the revenue officers after giving the direction to the concerned officers for the purpose of arresting to defaulter persons. When the order to be issued by the revenue officer against such defaulter persons, the name of the defaulters and the process in order to arresting the defaulter persons must be mentioned by the revenue officers, and this direction was also issued by the revenue officer. If he arrests to the defaulter person, try to bring before me. The further notice referred to in subsection 1 shall be served in the manner provided in subsection 1 and 2 and 3 of section 24, and copy thereof shall whenever practicable be also forwarded by the registered post to the डिफॉल्टर पर्सनस। इसमें एक्स्ट्रा जो बात है कि नोटिस की एक कॉपी रजिस्टर्ड पोस्ट करना भी रेवेन्यू ऑफिसर की ड्यूटी है। ये नहीं है कि अपने सबॉर्डिनेट के ज़रिए एक नोटिस दूसरा नोटिस ये भेज दिया गया। हो सकता है वो आदमी उस गांव में ना हो जो जिसका एड्रेस उसके पास रेवेन्यू ऑफिसर के पास हो, या उसकी डायरेक्टली जो है ना वो मुलाजम ने जाके सबॉर्डिनेट ने उसको जो है ना वो ना करवाई उसकी तमीम, तो ये फिर ज़रूरी है कि रजिस्टर्ड पोस्ट वाला भी उसके नाम पे इशू किया जाए। व्हेन द डिफॉल्टर इज ब्रॉट बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर, इफ अ डिफॉल्टर पर्सन इज अरेस्टेड, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ दैट ऑफिसर टू अरेस्ट टू दैट डिफॉल्टर पर्सन्स, वो आगे इसमें मेंशन की गई है। व्हेन द डिफॉल्टर इज ब्रॉट बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर्स, जब रेवेन्यू ऑफिसर के पास जब इसको पकड़ के लाया जाता है डिफॉल्टर को, तो रेवेन्यू ऑफिसर मे कॉज हिम टू बी टेकन बिफोर द कलेक्टर्स, तो उसकी कोई रीज़न लिखेगा फिर उसको कलेक्टर के पास लेके जाएगा। और मे कीप हिम अंडर पर्सनल रेस्ट्रेंट, और अपनी पर्सनल रेस्ट्रेंट में अपनी कस्टडी में भी उसको रख सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया अगर वो अपनी पर्सनल कस्टडी में रखेगा तो समथिंग टू बी रिटन बाय द रेवेन्यू ऑफिसर इफ ही डिटेन हिज पर्सनल कस्टडी और मे कीप हिम अंडर पर्सनल रेस्ट्रेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 days, 10 दिन से ज़्यादा वो नहीं इसको अपनी कस्टडी में रख सकता रेवेन्यू ऑफिसर। एंड देन इफ द एरियर इज स्टिल अनपेड कॉज हिम टू बी टेकन बिफोर द कलेक्टर्स, जब उसको अरेस्ट किया जाएगा डिफॉल्टर को, उसको पर्सनल कस्टडी में अगर रेवेन्यू ऑफिसर रखता है तो 10 दिन तक उसका वेट करेगा। हो सकता है कोई उसके कोई ऐसा आदमी है जो कि सिक्योरिटी दे, या कोई ऐसा आदमी है उसके घर वालों से कि वो जो रिकवरी है इसकी वो पे करे और ये इसको छुड़ा कर रिलीज करवा के ले जाए। अगर 10 दिन तक नोबडी हैज बीन पेड बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर इन ऑर्डर टू डिपॉजिटिंग द रिकवरी ऑफ रेंट, nobody has been appeared before the revenue officer in order to submitting the security papers, then the revenue officer duty bound to return something, some reasons, some causes, and produce such person before the district collector for initiating the action against the defaulter persons. Where the revenue officer keeping a defaulter under personal restraint is the assistant collector of the second grade. जब एक नायब तहसीलदार या तहसीलदार किसी भी डिफॉल्टर पर्सन को अपनी कस्टडी में रखता है आफ्टर अरेस्टिंग, he shall without delay report his action to the collector if the period of such restraint exceeds 24 hours. Within 24 hours, it is the duty bound of the revenue officers grade second submit the report to the district collectors. When the defaulter is brought before the collector may issue an order to the officer in charge of the civil jail of the district. जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास डिफॉल्टर को पेश किया जाएगा तो immediately action to be taken by the district collectors against the defaulter person in order to sending that person to the district civil district jails, directing to confine the defaulters, और जो ऑर्डर इशू किया जाएगा period was also mentioned by the district collector in that orders कि इस जेल में 1 माह 2 माह जितना भी वो कंसिडर फिट समझता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके अंदर लिखेगा कि 1 माह तक, यहाँ पे उन्होंने 1 माह लिखा हुआ है कि नॉट एक्सीडिंग 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर्स फ्रॉम विच डेट व्हेन द ऑर्डर हैज बीन पास आर इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 1 month till the 1 month he remain in the civil jails or as the collector thinks fit.
The process of arrest and detention shall not be executed against the defaulter who is a female, a minor, a lunatic, or a idiot persons. प्रोसेस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशंस, ये यहाँ पे माफ़ी आ गई है डिफॉल्टर के लिए कि ऐसा डिफॉल्टर जो फीमेल हो, माइनर हो, लुनाटिक हो और इडियट हो, such process in order to arrest, in order to detention, not to be issued, not to be issued by any competent authority, by any revenue officer. There are 2 or 3 persons. One is the female, second is the minors, lunatic or idiot person. इन लोगों के दरमियान no arresting process can be issued or passed by the revenue authority or revenue officers.